Hello students, how are you? I think you are well. सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.3 का आज हम अध्ययन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे वही रूल्स ऑफ कॉन्गोरेंट यानी रूल्स ऑफ कॉन्गोरेंट रूल्स, जिसके अंदर हम पहले कॉन्गोरेंट्स रूल्स के 2 नियम रूल्स teach. First rules SAS rules, second AAS या ASA rules. थर्ड रूल्स था जो कि AAA रूल्स यानी एंगल रूल्स। ये रूल्स कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल इफ these angles of 3 sides one triangle are equal to the 3 angles of another triangle, then the 2 triangles are congruent. कोई भी 2 ट्रायंगल हैं और इस दोनों ट्रायंगल के एंगल अगर इक्वल है, इस प्रकार से दूसरा एंगल, तीसरा एंगल यानी ये इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल है जो कॉन्गोरेंट है। इसी प्रकार फोर्थ रूल्स ये कह रहा है, देखिए SSS congruent rules. If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. This theorem can be proved using a suitable construction. You have already seen that in the SAS congruence rule, the pair of equal angles has to be the included angle between the pairs of corresponding pair of equal sides, and if this is not so, the 2 triangles may not be congruent. परफेंड एक्टिविटी में देखेंगे इसके कि क्या बता रहा है। कंस्ट्रक्शन 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स with hypotenuse equal to 5 centimeter and one sides equal to 4 centimeter each. इस प्रकार देखें, ये हमारे पास में 2 ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स क्या हो गई, हाइपोथिनस, और ये वन साइड हो गई 4 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल में भी देखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हाइपोथिनस हो गई और ये वन साइड हो गई। इस प्रकार कट देम आउट एंड प्लेस वन ट्रायंगल ओवर द अदर विथ equal sides placed on each other turn. The triangles, if necessary, what do you observe? The 2 triangles
cover each other completely and so they are congruent. Repeat this activity with other pairs of right angles. इस प्रकार the two triangles cover each other completely and so they are congruent. Repeat this activity with other pairs of the right triangles. What do you observe? You will find that two right triangles are congruent if one pair of sides and the hypotenuse are equal. You have verified this earlier classes. Note that the right angle is not the including angle in this case, so you arrive at the following congruence rules. अब अगला रूल्स हम देखेंगे और वो रूल्स है RHS congruence rules. If in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Note that RHS stands for right angle, H का मतलब hypotenuse and sides का मतलब एक साइड. इस प्रकार हम देखेंगे कि let us now take some examples that prove of RHS rules, SS rules, AA rules, SAS rules and AAS या ASA rules. एक क्वेश्चन ले रहे हैं. जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि AB is line segment P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equal distance from the points A and B. See figure 7.37. So that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि you are given that PA equal to PB and QA equal to QB and you are to show that PQ perpendicular है AB and PQ bisect AB. Let PQ intersect AB at C. Can you think of two congruent triangle in this figure? Let us take triangle PAQ and triangle PBQ. In this triangle देखेंगे ये हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ. देखिए इसको लेंगे तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि AP साइड AP इक्वल टू क्या हो गई BP. इस प्रकार हम लिखते जाएंगे कि AP इक्वल टू BP Q1 है. फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे दूसरा AQ इक्वल टू है BQ. ये भी क्या है G1 है. और तीसरा पॉइंट हो गया PQ इक्वल टू PQ यानी इसकी कॉमन साइड हो गई. अर्थात इसके अंदर देखेंगे देखो तीनों साइड आ गई S S S. अर्थात सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBQ SSS रूल से. यानी SSS रूल से हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये
ट्रायंगल पी ए क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल बी पी क्यू बाई सिपिसिटी रूल्स। नाउ लेट अस कंसिडर ट्रायंगल पी ए सी एंड पी बी सी। अब हम देखेंगे एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे पी ए सी और पी बी सी। देखो ये मैं चित्र में बता रहा हूँ, पी ए सी यानी ये वाला पी ए सी और पी बी सी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि आपको सबसे पहले यू हैव ए पी इक्वल टू हो जाएगी बी पी, ये भी गिवन बाई है। ट्रायंगल एंगल ए पी सी इक्वल टू हो गया एंगल बी पी सी, क्योंकि प्रूव दैट अबव कर चुके हैं हम ऊपर। इसी साइड पी सी इक्वल टू हो जाएगी पी सी, कॉमन साइड है। तो सो ट्रायंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी बी सी एस ए एस रूल से। देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई सिपिसिटी रूल्स इक्वेशन फर्स्ट। एंड तब लिखेंगे एंड एंगल ए सी पी इक्वल टू है एंगल बी सी पी बाई सिपिसिटी रूल्स। आल्सो एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से। सो दैट इक्वेशन बाई सिपिसिटी रूल से देखेंगे कि ऊपर एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी, अर्थात सो बी सी पी की जगह पे एंगल ए सी पी लिखेंगे और फिर ए सी पी का सम अप कर देंगे तो एंगल टू ए सी पी आ जाएगा। टू एंगल ए सी पी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए सी पी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 you can easily conclude that PQ is the perpendicular bisector of AB. Note that without showing the congruence of triangle PAQ and PBQ, you cannot show that triangle PAC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी बी सी, इवन दो ए पी इक्वल टू आ जाएगा बी पी गिवन बाई पी सी इक्वल टू आ जाएगा पी सी बाई कॉमन साइड्स, एंड एंगल पी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी सी। एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ए पी बी। इट is because these results give us SSA rules, which is not always valid or true for congruence of triangle. Also, the triangle is not included between the equal pairs of sides. इस प्रकार से देखिए ये कोई रूल्स नहीं है, SSA रूल्स नहीं है, कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो आप ऐसे ही मर्जी है जैसे कोई रूल्स नहीं बनाए, जो 5 रूल्स बताएं उसी में से हो गए। इसी प्रकार से देखो अब ये क्वेश्चन हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sides AB and BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that फर्स्ट कह रहा है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN। दूसरा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। इसका आंसर निकालने के लिए देखें, लिखेंगे गिवन दैट
बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर है। देन मीडियन इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसका बी सी का हाफ हो गया बी एम, और इसी प्रकार से क्यू आर का हाफ हो गया क्यू एन, अर्थात 1/2 बी सी इक्वल है 1/2 क्यू आर। तो सो दैट इसको लिख सकते हैं बी एम इक्वल क्यू एन, यानी ए एम पी एन आर मीडियंस। अब इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में देखेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, गिवन बाई है, ए एम इक्वल टू पी एन है, ये भी गिवन बाई है, बी एम इक्वल टू क्यू एन है, ये प्रूव अबव। हेंस ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल पी क्यू एन, प्रूव अबव। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सिम्प्लिसिटी रूल्स। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, गिवन बाई है, एंगल बी इक्वल टू क्यू है, प्रूव अबव है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, गिवन बाई है, ये भी। हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कॉन्ग्रुएंस के जो रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। थोड़े से रूल्स अच्छी तरह से फॉलो करें। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोलेसिस। आंसर 4 का लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी, एंगल बी एफ सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी कॉमन साइड से, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा बी गिवन बाई है। हैंस ट्रायंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ई सी बी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। इस प्रकार से ये भी प्रूव दैट हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो इस प्रकार हल हो जाएगा। अब हैंस ट्रायंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ई सी बी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, तो दैट एंगल एफ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी बी बाई सिम्प्लिसिटी रूल्स, दैट ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेशन ट्रायंगल। इस प्रकार ये तो हम कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज आइसोलेशन ट्रायंगल। आइसोलेशन ट्रायंगल की 2 साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 2 साइड्स है, ये तो ये इक्वल है, अर्थात ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोलेशन ट्रायंगल आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न अगर आपको दिया जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। और वापस एक बार रूल्स याद कर लें। रिमेंबर, पहला रूल्स है एस ए एस रूल्स, दूसरा ए एस या ए एस ए, तीसरा ए रूल्स, चौथा एस एस रूल्स, पांचवा आर एच एस रूल्स। इस प्रकार ये पांचों रूल्स इस नियम में काम करेंगे और इस रूल्सों की सहायता से आप कोई भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव दैट कर सकते हैं एंड देन क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने साथियों में शेयर कर दें
तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका और आप फिर उस वीडियो से इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।